Good morning, student. So in class 12th chemistry, today's topic is electrochemistry revision, and basically today's topic is how to solve Nernst equation problem. Basically one question is always comes from this Nernst equation, which is very simple. Basically in board level, a very simple question came from Nernst equation. So today we will try to understand how we can approach towards the Nernst equation. Basically, student, Nernst equation is a simple form, but before proceeding in this Nernst equation, you have to keep in your mind the two important things. One is the loan and second one is ABC. So जब हम लोगों ने सीखा था how to write a cell equation, means how to write a cell reaction by using the cell, or how to write the cell by using the cell reaction and cell reaction by the cell. मीन्स आप किसी रिएक्शन को देख के वो सेल कैसे लिख सकते हैं और सेल को देख के रिएक्शंस भी कैसे लिख सकते हैं, बेसिक सी मेथड थी. उसके अंदर अपने को ध्यान रखना लोन मेथड मीन्स लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, एंड सेकंड वन इज ए बी एंड सी मीन्स एनोड, एंड बी मीन्स ब्रिज सॉल्ट ब्रिज, सी मीन्स कैथोड. So by this, and second thing which we have to keep in our mind, that what is Nernst equation. Basically, student, a basic form of Nernst equation is this simply, that is E is equal to, or you can say EMF is equal to E naught, you know standard, minus 2.303 RT divided by NF log base 10 concentration of product divided by concentration of reactant. Sometimes the whole thing can be written as Q, reaction quotient, but the simple form is this. E, you know, this is the EMF, or you can say electrode potential. It might be at any concentration, but this is a standard EMF, you can say, or standard electrode potential. So R, you know, universal gas constant, T is temperature, N is the number of electron exchange during the reaction, F is the Faraday constant, and log base 10, this is the concentration of product over concentration of reactant. Okay, so on putting the value at 298 Kelvin and all these things, R, T, F, you know, 96500, so we can got a question that is frequently used in our examinations. जो question हमको करनी है use, that will be, I am going to write here, E cell, you know, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N log base 10 product, this is concentration of product divided by concentration of reactant. So this is a simple procedure by which you can solve the problems, but for different kinds of reaction you can write these two things like this. This product over reactant you can write in place of this anode, you can write here anode over cathode, anode to the power you can say x, cathode to the power you can say y. तो अभी देखेंगे ये चीज़ क्या है x और y, बट सिंपल यू कैन कीप इन योर माइंड. इसी क्वेश्चन से आपके नर्स के प्रॉब्लम बनने वाले. ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से करेंगे इस नर्स इक्वेशन पे अप्रोच. मान लीजिए आपके पास कोई भी सेल है, मान लो एक रिएक्शन आपको देता है. सपोज यू हैव अ रिएक्शन इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इज Zn सॉलिड प्लस Cu+2, it is an aqueous form, is convert into Zn+2 aqueous प्लस Cu solid. अब आपको पता है जो सॉलिड फॉर्म में उसका तो कंसंट्रेशन यूनिटी मतलब चेंज होगा नहीं, तो जो एक्वस फॉर्म में उसी को अपने को देखना है ध्यान से. ठीक है, सो वी कैन राइट द सेल. ये सेल रिएक्शन है तो इसको देख के अपन सेल लिख सकते हैं बड़ी आसानी से. देखिए, जिंक इज गोइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम 0 to +2, मीन्स 0 से जिंक कितना जा रहा है, +2 जा रहा है. कॉपर +2 से 0 जा रहा, दिस इज 0, दिस इज +2, तो रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है. तो ऑक्सीडेशन वाला लेफ्ट में एनोड होगा, अपने को ये पता है. इसको ऐसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Zn+2 एक्वस, देन सॉल्ट ब्रिज, देन देखिएगा Cu+2 Cu+2 aqueous is going to convert into Cu solid.
ओके, सो ये हमने लिख लिया। देखिए लोन मेथड भी इसमें हो गया कंप्लीट एंड ABC भी कंप्लीट हो गया। दिस इज एनोड, दिस इज एनोड, दिस इज ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज यू कैन से, एंड दिस इज कैथोड। अपने को पता है एनोड पे 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे +2 से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो कैथोड एंड एनोड हमने आसानी से लिख लिए। तो व्हेन you can easily write ABC, then easily you can write the in this cell into the nurse form, you can calculate E cell or E naught cell। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक चीज़ क्या होती है स्टूडेंट, तो किसी भी गैल्वेनिक सेल की EMF आप बहुत अच्छे से मतलब जानते हैं। E naught cell, E naught cell क्या होती है, E naught cell इज इक्वल टू E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड। आसानी से कर लेंगे E naught cell कैलकुलेट। ई सेल अपने को निकाल लेना है नर्स्ट इक्वेशन से। एन का वैल्यू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग कैसे इस चीज़ को देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आया था अपना, उस पर हम लोगों ने प्रोडक्ट की जगह ये लिख लिया था एनोड की पावर x अपॉन कैथोड की पावर y। अभी देखेंगे आगे कुछ प्रॉब्लम्स और लेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो हाउ यू कैन अप्रोच टुवर्ड्स द रिएक्शन। एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से ये देखेंगे। दिस इज फर्स्ट, द सेकेंड वन इज हाउ यू कैन अप्रोच। दिस इज Cu सॉलिड, अब मैं सॉलिड लिख नहीं रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड इट, प्लस 2Ag प्लस एक्वस is going to give you Cu plus 2 aqueous plus Cu plus 2 aqueous plus twice Ag. Clear? Suppose this is the reaction. Okay. Now you can easily write its cathode and anode. ठीक है, अब देखिए कैथोड के अंदर क्या होगा, रिडक्शन, एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन। तो आप देख पा रहे हैं Ag प्लस Ag में जा रहा है, मीन्स रिडक्शन हो रही है। अब आप सीधे सीधे लिख सकते हैं Ag प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन, बाई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, Ag के अंदर। अब रिएक्शन पर 2 है, देख लेंगे अभी। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन एट कैथोड। अब देख लेते हैं एनोड पे अंदर क्या रिएक्शन हुआ। ठीक है, सिंपल एनोड के अंदर क्या हुआ, Cu सॉलिड फॉर्म में था, +2 में गया। कैसे जा सकता है, बाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। Cu इज गोइंग टू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे सबसे पहले नस लिखने से पहले, अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज द रिएक्शन, दोनों जगह सेम होना चाहिए। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई ये कर दें, इसको 1 से कर दें मल्टीप्लाई। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, कैंसिल होकर अपने को सेल मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए अगर आपको लिखना है सेल रिएक्शन, सो हाउ यू कैन राइट इट। देखिए मैं लिख रहा हूँ ई सेल, कैसे लिखना है, इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, बोलिएगा एन की जगह कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो यहाँ पर तो 1 था, यहाँ 2 था, बैलेंस करके हमने दोनों जगह कितना ये कर लिया, 2 कर लिया। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस 2। क्लियर, लॉग बेस 10। अब देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स एनोड। अब देखिएगा एनोड पे कौन है, Cu कन्वर्ट हो रहा है Cu प्लस 2 पे, तो हम सीधे सीधे ये लिखेंगे Cu प्लस 2। अब देखिएगा हमने Cu नहीं लिखा बिकॉज Cu इज अ सॉलिड, और यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में तो सॉलिड है तो डेफिनेटली इसी का होगा Cu प्लस 2 डिवाइडेड बाई, देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यू कैन से कैथोड। अब देखिएगा कैथोड पे कौन है, Ag प्लस है, और रिएक्टेंट पे देखिए Ag प्लस, ये तो सॉलिड फॉर्म पे है, तो नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, Ag प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पार x और y, कैसे इसको करें अंडरस्टैंड, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाइड किया है, देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, देखो Cu है ना, तो Cu इज गोइंग टू Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज गोइंग टू बी x, और यू कैन से Cu टू द पावर 1। तो यहाँ देखिएगा ओवर कैथोड, कैथोड पे कौन है Ag, किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो Ag टू द पावर 2। और यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड बाई प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के अंदर Cu प्लस 2 है, रिएक्टेंट के अंदर Ag प्लस है, तो यहाँ इसकी पावर 2 है तो हमने 2 कर दिया। तो ये तो x और y तो तब है जब आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हो, और मतलब डायरेक्टली आपने यहाँ सीधे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, यू कैन राइट इट एज x एंड y। एनोड
एनोड पे फैक्टर x, कैथोड पे y, जिस चीज़ से आपने मतलब मल्टीप्लाई किया उसको आप ये लिख सकते हैं। अदरवाइज इफ़ यू कैन नो, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियोस पे मैंने बेसिक सी बातें भी यहाँ पर की है कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो बेसिक सा हमने ये तरीका आपको ये बता दिया कि आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब जो भी होगी कंसंट्रेशन आपको दी रहेगी यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग, दिस इज 0 पॉइंट समथिंग है, सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। लॉग आपको दिया रहेगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट ई सेल। So this is a very simple approach towards the Nernst equation. But one thing you have to keep on your mind, you have to balance the equation very clearly. You have to balance the equation. Otherwise फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं ये कर रहे तो आपको इलेक्ट्रॉन लिखने में भी प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और ट्राई करता हूँ। एक आपको क्वेश्चन भी देता हूँ कि फाइंड द EMF ऑफ सेल। आपको इस सेल का EMF ये निकालना है। CR is going to convert, इसको ये लिखिएगा Cr+3, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, एंड दिस इज Fe+2 0.01 मोलर एंड कन्वर्ट्स इनटू Fe सॉलिड। ओके, यहाँ पर कुछ आपको एडिशनल वैल्यू मिल सकती है, डेटा आपको दिया हो सकता है E0 Cr+3 इज गोइंग और Cr माइनस 0.75 वोल्ट, और यहाँ से आपको दे सकता है E0 Fe2 पॉजिटिव इज गोइंग टू कन्वर्ट Fe एंड दिस वैल्यू इज माइनस 0.45 वोल्ट। तो पिछली बार बोर्ड में भी आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ट्राई कर सकते हैं। अब डायरेक्टली देखो पैटर्न से जाएंगे, बहुत अच्छे से बुक्स में भी दिया है मैंने, पिछली वीडियोस में भी मतलब बताया हुआ आपको, बट फिर बोल रहा हूँ डायरेक्ट यू कैन राइट द इक्वेशंस लाइक दिस। ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, फिर से लिख लें, अब तो याद हो जाएगा आपको भी। E0 सेल माइनस 0.0591 ओवर n लॉग बेस 10, फिर से क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, मीन्स एनोड ओवर कैथोड की पावर x और y, प्रोडक्ट एनोड कैथोड की पावर x और y बोल सकते हैं, या प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे आप रिएक्शन लिख सकते हैं ई सेल के लिए। E0 सेल कैलकुलेट करना है आपको, कैसे करेंगे मैंने अभी बताया था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, वैल्यूज n रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ठीक है, यानी कि Cr+3 में जा रहा है, ये देखिएगा 3 का चेंज है, और यहाँ Fe+2 कितने में जा रहा है, 2 से 0 में जा रहा है, तो कितने का चेंज है, 2 का। अब देखिए बैलेंस कैसे ये करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई 2 को 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो n की जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.01 ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.1, पार्स जो भी है वो रख दीजिए, यू कैन इजीली कैलकुलेट ई सेल। सो दिस इज योर प्रॉब्लम बाय विच यू कैन अप्रोच दिस नर्स्ट इक्वेशन प्रॉब्लम वेरी सिंपली। इट इज़ वेरी सिंपल। बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक नॉर्मल सा होता है क्वेश्चन नर्स्ट के ऊपर, जो कि एक सिंपल डेटा के अंदर हो सकता है, और आपको उसके अंदर नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। सो ट्राई सम सिंपल प्रॉब्लम्स फ्रॉम हियर एंड ऑल्सो फ्रॉम योर NCERT बुक। तो फर्दर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम so you can comment there, so definitely we will solve it on the next video. So till then, thank you and have a nice day.